کراچی میں ایک اور آگ، ایک اور سانحہ۔ شاہراہ فیصل پر ہوٹل میں آتش زدگی، 5 خواتین اور 5 ڈاکٹر سمیت 12 افراد جاں بحق۔ چینی باشندوں اور کرکٹر یاسم مرتضی سمیت 76 زخمی۔ فرض شناسی کی اعلیٰ مثال، ہوٹل مینیجر نے دوسروں کو بچاتے ہوئے جان دے دی۔ بیمار ماں خبر سن کر نڈھال، اہل خانہ کا برا حال۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ صبح میں ان کو لاسٹ ٹائم دیکھ رہی ہوں، اس کے بعد میں ان کو دیکھ نہیں پاؤں گی۔ لوگوں نے شیشے توڑ کر اور پردوں سے لٹک کر جان بچائی۔ ہوٹل میں ہنگامی راستہ نہ ہونے اور فائر الارم نہ بجنے کا انکشاف، 1 ہفتے میں تحقیقات مکمل کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے زخمیوں کی عیادت کی۔ آگ لگنے کے پے در پے واقعات، ہر بار دعوے اور وعدے، عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ انسانی جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار کون؟ عوام کا سوال۔ کراچی میں شاہراہ فیصل پر دن بھر بدترین ٹریفک جام، وی آئی پی موومنٹ سے مزید مسائل، گاڑیوں کی طویل قطاروں سے عوام کو پریشانی۔ میں اب آپ کو ایک بریکنگ دے دیتا ہوں کہ کمیٹی نے اپنی سفارشات فائنل کر دی ہوئی ہیں، اب سیکیورٹی کے پاس ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت امید ہے کہ اس سال فروری میں گوندے پنجاب جو ہے وہ بسنت منائے گی۔ صوبائی وزیر کھیل کو لفظوں سے کھیلنا مہنگا پڑ گیا، رانا مشہود بسنت بنانے کا بیان دے کر مکر گئے۔ فیصلہ نہیں ہوا، پنجاب حکومت کی تردید، عوام، سیاستدان اور علماء بھی برہم۔ ایک انسان کا گلا کٹنے کا خدشہ بھی ہو یا جان جانے کا خدشہ بھی ہو تو پھر یہ حرام ہے۔ لندن کے 4 اپارٹمنٹس 1993 سے 96 کے درمیان 19,05,000 پاؤنڈز میں خریدے۔ حسین نواز نے اضافی دستاویز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ بنی گالا کے گھر کے لیے جمائمہ سے رقم ادھار لی، لندن فلیٹ بیچ کر قرض اتارا۔ عمران خان کا الیکشن کمیشن میں جواب، جہانگیر ترین کے خلاف نااہلی ریفرنس پر فیصلہ 15 دسمبر تک محفوظ۔ ضدی بچے کی طرح تم زمین پہ لیٹ کے ٹانگ مارتے جا رہے ہو، مارتے جا رہے ہو، مارتے جا رہے ہو، روتے جا رہے ہو، صرف اس لیے کہ تمہیں وہ چیز نہیں ملی جو تمہیں چاہیے۔ عمران خان ادھار کی بات کرتے ہیں، جمائمہ انکاری، کون جھوٹا کون سچا؟ لیگی رہنماؤں کا سوال، کہتے ہیں پیناما کیس میں حکومت کو کلین چٹ مل جائے گی۔ جاگ پنجاب جاگ، تیری پگ کو لگ گیا شریفوں کا داغ۔ بلاول نے نون لیگ کے پرانے نعرے میں ترمیم کر دی، نواز شریف کے جانے کی پیش گوئی۔ وزیر داخلہ پر نیشنل ایکشن پلان سے سیاسی فائدہ اٹھانے کا الزام، کراچی کا اگلا میئر جیالہ ہوگا، بڑے جیالے کے بڑے دعوے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں، کنٹرول لائن کی صورتحال پر بات چیت، سپہ سالار سے چینی لبریشن آرمی کے کمانڈر کی بھی ملاقات۔ کراچی ایئرپورٹ سکھر میں حساس ادارے اور چودھری اسلم پر حملے سمیت 58 افراد کے قتل میں ملوث 4 دہشت گردوں کا انجام، آرمی چیف نے سزائے موت کی توثیق کر دی۔ کشین میں سیکیورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، سانحہ سول ہسپتال کوئٹہ کا ماسٹر مائنڈ 4 ساتھیوں سمیت ہلاک، 40 کلو بارود، خودکش حملے کی جیکٹس برآمد، وزیر داخلہ بلوچستان کی تصدیق۔ جعلی عدالتی فیصلوں سے 1,93,000 کنال اراضی ہتھیانے کا اسکینڈل، ملزموں کے گرد گھیرا تنگ، پنجاب حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ تیار، متاثرین کے بیانات قلم بند۔ نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مطلب یہ ہے اپنی کافیشوں سے یہ جو نیوز بریک کی ہے، جس کی وجہ سے ہم تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں، اب ایکشن ہوا ہے اس کے اوپر۔ سانحہ بلدیہ فیکٹری کے مرکزی ملزم رحمان بھولا کو وطن لانے کی تیاریاں، وزارت داخلہ نے انٹرپول کو خط لکھ دیا۔ کراچی کے پاک کالونی تھانے میں وسیم راجہ کی ہلاکت، کارکن 1 دعوے دار 2، متحدہ پاکستان اور لندن نے اپنا کارکن قرار دے دیا۔ دہشت گرد اسحاق بابی اور عاصم کیپری نے اقبال جرم کر لیا، فوجی جوانوں پر حملے، امجد صابری قتل سمیت 13 وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف۔
मुजालिम की इंतहा, मोदी हिटलर बन गया। भारतीय फौज का दरगाह दस्तगीर साहब पर धावा, यासीन मलिक भांजो समेत गिरफ्तार। फारूक अब्दुल्ला को बुढ़ापे में अकल आ गई, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की हिमायत का ऐलान। विफाक मर्दमशुमारी का अमल 15 मार्च से शुरू करने के लिए तैयार, मुशावरत मुकम्मल। हतमी मंजूरी के लिए समरी मुश्तरका मुफादात काउंसिल को भिजवा दी गई। फाटा इस्लाहात की जाने पहला कदम, FR कोहाट में पहली यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का 2017 तक कबायली इलाकों में बल्दियाती इंतखाबात कराने का ऐलान। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर फिजिक्स प्रोफेसर अब्दुल सलाम से मंसूब। वज़ीर आज़म ने PhD स्कॉलरशिप की तादाद 5 करने की मंजूरी दे दी। सेंट्रल दाखिला पॉलिसी का मसला मिल बैठकर हल करें। लाहौर हाई कोर्ट ने PMDC और मेडिकल कॉलेजेस को 13 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। मुल्तान में गैस की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। शालीमार कॉलोनी में लोगों का मुर्गा बनकर एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के पहले दिन वाशिंगटन में भरपूर एहतजाज की तैयारियां। 1,25,000 खवातीन के फेसबुक पेज पर दस्तखत। सबसे पहले जिक्र शहर कायद का, जहां एक और आग लगी और एक और सानहा हुआ। होटल में आतिशज़दगी से 5 खवातीन और 5 डॉक्टर समेत 12 अफराद जा भाग हो गए, जबकि चीनी बाशिंदों और क्रिकेटर यासिम मुर्तजा समेत 76 अफराद जख्मी भी हुए। वजीर आला सिंध ने 7 रोज में इस आतिशज़दगी के वाक़े की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। कराची में निजी होटल में आग लगने का ये वाक़या पेश आया है। रिपोर्ट कर रही हैं समरीन मंसूरी। शाहराह फैसल पर निजी होटल के किचन में रात गए अचानक आग भड़क उठी। आग से गैर मुल्कियों समेत कई अफराद इमारत में महसूर होकर रह गए। देखते ही देखते शोले बढ़ते गए और धुआं होटल में फैल गया। दम घुटने से 5 खवातीन, 5 डॉक्टर और होटल के ड्यूटी मैनेजर समेत 12 अफराद दम तोड़ गए। मेयर कराची वसीम अख्तर भी मौके पर पहुँचे। वसीम अख्तर का कहना था कि आग लगने के बाद फायर अलार्म बजा और ना हिफाजती इंतजाम किए गए थे। होटल के एडमिनिस्ट्रेशन है, ना उसका कोई आदमी मौजूद है, ना उनके पास कोई ऐसी एग्जिट थी जिससे लोग निकल जाएं, फायर एग्जिट जिसे कहते हैं, ना कोई फायर अलार्म था। कमिश्नर कराची कहते हैं कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बेशतर एग्जिट दरवाजे बंद थे, खिड़कियां तोड़कर जाने बचाई। किसी किस्म का अलार्म नहीं बजा, कि कोई रेस्क्यू का इनका सिस्टम नहीं है, कोई गैस मास्क, स्मोक मास्क, कोई कुछ नहीं है। सारा इसके ऊपर रिलाई कर रहे थे, ये रेस्क्यू वाले आएंगे तो वो बचाएंगे। बाज़ एग्जिट बंद थे और ताले लगे हुए थे, तो उनको हमें तोड़ना पड़ा। विंडो तोड़ते हुए उस वक्त ये कट लगा है शीशे से है, तो हमारे सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं था कुछ छलांग लगाने के लिए। आग से मुतासरा अफराद को पहले जिना अस्पताल पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े की तहकीकात करके 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ समरीन मंसूरी, दुनिया न्यूज़ कराची। फर्ज शनासी की आला मिसाल, होटल मैनेजर दूसरों की जान बचाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। बीमार मां खबर सुनकर निढाल हो गई, जबकि अहले खाना का भी बुरा हाल है। कराची के निजी होटल में लगने वाली आग में फर्ज शनास की आला मिसाल सामने आई है। होटल मैनेजर दूसरों की जान बचाते हुए अपनी जान गंवा बैठा। बीमार मां तक जब ये खबर पहुंची तो बीमार मां ये खबर सुनकर निढाल हो गई। निजी होटल का ड्यूटी मैनेजर इलियास बाबर अपना फर्ज अदा करते हुए जान से गया। इलियास बाबर होटल में अचानक लगने वाली आग से लोगों को निकाल रहा था कि धुएं और अंधेरे में खुद भटक गया। इलियास की बेवा का कहना था कि होटल इंतजामिया के बजाय रिश्तेदारों और न्यूज चैनल के जरिए वाक़ये का पता चला। खाना वाना खा के हम लोगों से मिलके, बच्चों से मिलके तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और फिर नाइट ड्यूटी में थे तो रात में निकलते थे और सुबह फिर आया करते थे, तो बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सुबह मैं उनको लास्ट टाइम देख रही हूँ, उसके बाद मैं उनको देख नहीं पाऊँगी।
इलियास बाबर के बेटे इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उनके बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाऊँ, बस यही उनकी एक ही ख्वाहिश थी। बस मुझे हमेशा बोलते रहते थे, बेटा पढ़ के दिखाओ, अच्छा बन के दिखाओ। वालिदा की नासाज तबीयत पर इलियास बैरून मुल्क से कुछ अरसे कबल ही वापस आए थे। प्रॉपर इंतज़ाम नहीं, इतनी बड़ी आग लग गई, इतना बड़ा किचन आप लोग चला रहे हो, कोई ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशन लगते हैं सब जगह कि वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, ये क्यों नहीं लगाए? इतना बड़ा होटल किस बेस पे चला रहे हैं? अहले खाना की आला हुक्काम से अपील है कि आग लगने की वजूहात मालूम करके जिम्मेदारों को सजा दी जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ शाज़िया अजीज, दुनिया न्यूज़, कराची। होटल की आग से क्रिकेटर्स भी मुतासिर हुए। सुहेब मकसूद, हम्माद आजम, आमिर यामीन होटल में फंस गए। क्रिकेटर यासिम मुर्तजा और करामत अली जान बचाते हुए जख्मी हो गए। होटल की आग ने कई घर उजाड़ दिए, वहीं क्रिकेटर्स भी मुतासिर हुए हैं। सुहेब मकसूद, हम्माद आजम, आमिर यामीन होटल में फंस गए। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। कराची के होटल में लगने वाली आग कौमी क्रिकेटर्स के लिए भी डरावना ख्वाब साबित हुई। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के लिए कराची में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेटर सुहेब मकसूद, हम्माद आजम और आमिर यामीन समेत दीगर खिलाड़ी होटल में मुकीम थे। जख्मी होने वाले क्रिकेटर यासिम मुर्तजा का कहना है खिड़की से कूद कर जान बचाई। मैंने और मेरे रूममेट ने रूम से बाहर भागने की कोशिश की, जैसे दरवाज़ा खुला बाहर धुआं, इससे भी ज़्यादा धुआं था और आग थी। फिर हमने खिड़की के शीशे तोड़े, उधर से छलांग लगा नीचे। स्मोक और ये चीज़ थोड़ी सी फील हुई तो बाहर जाके देखा तो बहुत काला धुआं था और बहुत ज़्यादा था। मैंने अपने रूममेट को उठाया, पहले तो डोर से मतलब मेन डोर से एग्जिट की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन वो पॉसिबल नहीं नज़र आया। तो दोबारा हम लोग रूम में आ गए। तो उसके बाद आके हम लोगों ने करामत और एक और वो आदिल वैसे उनका रूम बिल्कुल साथ था, वो भी हमारे रूम में आ गए थे। तो आके हम लोगों ने पहले विंडो तोड़ी, तो उसके बाद एक करामत ने छलांग भी मारी, वो थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ। तो हम लोगों ने फिर उसका वेट किया कि शायद कोई रेस्क्यू टीम आए या थोड़ा सा वेट करे कि ये चीज़ शायद कम हो जाए। 2 बच्चे थे, उनकी हेल्प की, शायद अल्लाह ताला ने उसका सिला हमें भी दे दिया कि हाँ अल्लाह ताला ने हमारी भी जान बचा ली। क्रिकेटर्स का कहना है कि इस हादसे के बाद वो ज़हनी तौर पर बहुत मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अराजी स्कैंडल दुनिया न्यूज ने बेनकाब किया और अब मुल्जिमों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है, जबकि मुतासरीन के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। जबकि पंजाब हुकूमत की तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी तैयार है। इस बारे में देखते हैं लाहौर से मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। उल्टी गिनती शुरू हो गई। जालसाजों के डॉन को जेल की सलाहों के पीछे डालने के लिए कानून हरकत में आने लगा। 1,93,000 कनाल अराजी के जाली अदालती फैसले तैयार करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। दुनिया न्यूज ने अराजी स्कैंडल बेनकाब किया तो इदारे भी हरकत में आ गए। मुतासरा अफराद जुनेद बारी और मियां आफ्ताब ने डीजी एंटी करप्शन पंजाब को बयानात कलम बंद करवा दिए। उनका कहना था कि जालसाजों ने बहुत जुल्म किया, ताहम दुनिया न्यूज का हकायक से पर्दा उठाने पर मशकूर हैं। एक तो मैं दुनिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने मतलब ये है अपनी काफिशों से ये जो न्यूज़ ब्रेक की है, जिसकी वजह से हम तो पता नहीं कितने सालों से धक्के खा रहे हैं। अब एक्शन हुआ है इसके ऊपर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है इस मुल्क की हिस्ट्री के अंदर कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है डिस्कवर होने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो रही है। दूसरी जानिब सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सरबराही में हुकूमती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें LDA, एंटी करप्शन, पुलिस के आला अफसरान और लैंड रिकॉर्ड के आला अफसरान ने शिरकत की। कमेटी के अरकान ने वाजे किया कि अराजी स्कैंडल हकायक पर मबनी है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन शुएब साइमन के साथ मोहम्मद। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि वजीर तालीम पंजाब राना मशहूद को लफ्जों से खेलना महंगा पड़ गया। बसंत मनाने का बयान देकर मुकर गए, फैसला नहीं हुआ, पंजाब हुकूमत ने तरदीद कर दी। जी हाँ, अवाम, सियासतदान, उलेमा भी बरहम हो गए। वजीर तालीम पंजाब राना मशहूद ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में मशहूर हो गए और लाहौरियों को चकरा दिया। मुतालिका कमेटी से मुशावरत के बगैर बसंत मनाने का इंदिया दे दिया। जबकि कमेटी चेयरमैन ने बयान मुस्तरद किया तो पैंतरा बदल लिया और खरी खरी सुना दी उलमा ने। ये मैं अब आपको एक ब्रेकिंग दे देता हूँ। फरवरी में गुंदे पंजाब जो है वो बसंत मनाएगी। खूनी
खेल की इजाजत का शोशा छोड़ते ये हैं पंजाब के वजीर तालीम राना मशहूद, जिन्हें ब्रेकिंग न्यूज देने का शौक चढ़ाया तो लोगों को ही चकरा दिया। राणा जी ने मुतालिका कमेटी से पूछा, ना अपनी हुकूमत से मशवरा किया, बस जो जी चाहा बोल दिया। ये मैं अब आपको एक ब्रेकिंग दे देता हूँ कि कमेटी ने अपनी सिफारिशात फाइनल कर दी हुई हैं, अब सिक्योरिटी के पास है। इंशाल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि इस साल फरवरी में गूंदे पंजाब जो है वो बसंत मनाएगी, अगर सिक्योरिटी जो SOPs अगर हम पूरे करने में कामयाब हो गए। मामला मीडिया पर आया तो शोर मच गया, शहरियों ने भी शदीद रद्द अमल दिया। पंजाब हुकूमत ने दोबारा पतंगबाजी से पाबंदी ख़त्म कर दी है, जो इंतहाई मैं समझता हूँ, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इंतहाई ख़तरनाक काम है। इनको चाहिए कि फ़ौरन दोबारा पाबंदी लगाएं और ये बहुत ही नुकसानदेह अमल है। उलमा ने भी बसंत को इंतहाई खतरनाक करार दिया, फैसला वापस लेने का मुतालिबा भी किया। एक इंसान का गला कटने का खदशा भी हो या जान जाने का खदशा भी हो तो फिर ये हराम है। उन माओं से पूछें, उन वालिदैन से पूछें जिनके घरों में रोजाना शामी गरीबा होती है। बात बढ़ी तो बसंत कमेटी के चेयरमैन ज़ईम कादरी भी बोल पड़े, अपने ही साथी वजीर के बयान को मुस्तरद कर दिया। अभी इस पे कोई फैसला हुआ ही नहीं है, जो है वो मतलब बड़ी सिंपल बात है कि देयर इज नो डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन फॉर। यकीनन बहुत कोशिश हो रही है कि इस खेल को जो है वो दोबारा रिवाइव किया जाए, लेकिन उसके तरीकाकार को अभी तक जो है वो हतमी शक्ल नहीं दी। सुबकी हुई तो राना मशहूद ने बयान को गलत रंग देने का इल्जाम लगा दिया, फिर सिर्फ सिफारिशात भिजवाने का मौकिफ अपना लिया। राना मशहूद तो ब्रेकिंग देकर फंस गए, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है। जुड़े रहिए दुनिया न्यूज के साथ। द्यामर भाषा डैम की तामीर के लिए अहम पेशरफ्त, वजीर आजम ने प्लान की मंजूरी दे दी, 2017 के आखिर तक तामीर शुरू करने की हिदायत।